Hello students, today we are going to discuss the topic of stack. Stack is the first topic of your second unit. It is a data structure which follows the property of LIFO, that is last in first out. You can understand stack as a pile of plates in which you insert the stack in which you insert the plates at the end, and when you need a plate, then you take the plate which is at the top. So we will see few examples on that, and how this is implemented in C language, how you create a data structure in C language. Now it comes under the category of linear data structure. So already we have done data structure are of two type, linear data structure and non-linear. In category of linear data structure we have arrays, queue and stack. So now stack is a linear data structure in which means that elements are organized in a sequential manner. We will see. Now next is, what is a stack? A stack is called a last in first out. That I already told you that a stack is called a last in first out. That is LIFO collection. This means that the last thing we added is the first thing that gets pulled. That is, first the operation that we call is the inserting the element is called the pushing, and taking the element from the stack is called the popping. That is the stack pushing and popping. When we insert an element, then we say that we are performing the push operation, and when we take an element out of the stack, that means we are saying that we are performing the pop operation. A stack is a sequence of items that are accessible at only one end of the sequence. A stack is a sequence of items that are accessible at only one end of the sequence. You can better understand it with the help of this images. Now this is a stack of newspaper. Now this is a stack of plates. When I will insert one more plate on this stack, that means I am performing the operation of pushing. That is, I will say that push one more plate on this. when I will add, तो मैं क्या बोलूंगी, जब मैं एक और प्लेट को इसमें ऐड करूंगी, तो I will be saying, in technically I will be saying that I am performing the push operation. I am performing the push operation. Push means one item is being added on the stack. Now जब मैं इसमें से कुछ निकालूंगी, जब कोई प्लेट मुझे चाहिए होगी, तो मैं क्या करूंगी कि मैं सबसे ऊपर वाली जो प्लेट है इसको निकाल लूंगी. दैट उस ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं? पुश. सो टोटल मिला के जो ऑपरेशंस हैं, टोटल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करने को हम क्या बोलते हैं? पुश. और किसी भी एलिमेंट को स्टैक से निकालने को हम क्या बोलते हैं? पॉप ऑपरेशन. ये आपका स्टैक है. अब हर इंडिविजुअल इसमें क्या है? एक एलिमेंट है. नाउ ये सारे सीक्वेंशियल है ना, एक के बाद एक रखे हुए हैं, लेकिन अगर आपको बीच से ये प्लेट निकालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले इसको निकालना पड़ेगा, फिर आप इसको निकालेंगे, फिर आप इसको निकालेंगे, फिर आप इसको बाहर करेंगे, फिर आप इसको बाहर करेंगे, देन आप इस वाली प्लेट तक पहुंच पाएंगे. ऐसा नहीं कर सकते. स्टैक की ये प्रॉपर्टी होती है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप डायरेक्टली इस वाली प्लेट को बाहर निकाल लें. ऐसा नहीं कर सकते. तो ये मेरा एक स्टैक है. स्टैक की यही प्रॉपर्टी होती है, इज लास्ट इन फर्स्ट आउट. का मतलब ये है कि जो एलिमेंट लास्ट में पुट होगा वही सबसे पहले बाहर आएगा. ठीक है. नाउ अब इसी तरीके से, तो एलिमेंट सीक्वेंशियल होते हैं. मैं रिपीट कर रही हूँ, एलिमेंट सारे सीक्वेंशियल होते हैं. एलिमेंट स्टैक के अंदर किसी भी एलिमेंट को रखने को और एक नया एलिमेंट ऐड करने को हम पुश बोलते हैं. एक एलिमेंट निकालने को हम पॉप ऑपरेशन बोलते हैं. एक फिक्स साइज होता है, अगर उससे ज़्यादा एलिमेंट हो जाते हैं तो हम उसे बोलते हैं ओवरफ्लो. अगर उससे कम एलिमेंट होते हैं तो हम उसे बोलते हैं अंडरफ्लो. ठीक है. नाउ तो कुछ ऑपरेशन है दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ इसी तरीके से ये एक स्टैक है. आप लोगों ने पाइल ऑफ चेयर भी देखा होगा. चेयर्स का एक सीक्वेंस होता है, जो प्लास्टिक चेयर्स आती हैं, उसमें से अगर आपको उसमें आप एक के ऊपर एक चेयर रखते चले जाते हो, वो जो चेयर रखते चले जाते हो वो क्या बनता रहता है? कि स्टैक बनता रहता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन स्टैक. जो ऑपरेशन स्टैक पर परफॉर्म कर सकते हैं वो है पुश,
पॉप, ये दो मैं तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अंडरफ्लो और ओवरफ्लो। नाउ अंडरफ्लो और ओवरफ्लो क्या होता है? अंडरफ्लो में यानी कि जब मेरा एक जगह खाली है, जब मेरी जगह खाली है उसको हम क्या बोलते हैं? अंडरफ्लो। पूरी जगह खाली है, कोई भी चेयर नहीं है या कोई भी प्लेट नहीं है, जहाँ पे प्लेट्स रखने की जगह होती है वहां पर कोई भी प्लेट नहीं है, खाली जगह रखी हुई है। अब मैं जब प्लेट रखना शुरू करूंगी तो मैं पुश करूंगी, लेकिन जब तक वो जगह खाली है तो हम उसे क्या बोलते हैं? अंडरफ्लो। जब वो पूरी भर गई है उसके बाद जैसे आप अगर उसमें कोई और प्लेट रखेंगे तो पूरी स्टैक जो है, जो पूरा जो स्टैक ऑफ प्लेट्स है वो गिर जाएगा, उसको हम बोलते हैं ओवरफ्लो। वैसे मेमोरी सी लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है कि जब गिरने लगे प्लेट्स की जो पाइल है वो गिरने लगे तब ओवरफ्लो होगा। सी लैंग्वेज में होता है, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हमने जो साइज एलोकेट किया है, जब वो सारे एलिमेंट्स वहां आ गए, सपोज करो यहाँ जब वो सारे एलिमेंट्स आ गए हैं तो उसके बाद हम उसमें कोई और एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते, तो उसको हम बोलते हैं ओवरफ्लो। जैसे लेट सपोज यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 की जगह है, तो अगर एक भी एलिमेंट नहीं है तो अंडरफ्लो। फिर हम 1 बाय 1 करके एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो पुश ऑपरेशन। 1 बाय 1 करके हम एलिमेंट को अगर निकालेंगे तो पॉप ऑपरेशन। जब 8 की यहाँ पर जगह खाली है, 8 स्लॉट्स है, 8 कंपार्टमेंट्स हैं, जब हम 8 एलिमेंट्स इंसर्ट कर देंगे और 9th एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे तो दैट विल बी द ओवरफ्लो, राइट? नाउ विल सी पुश, इट इज यूज्ड टू इंसर्ट आइटम्स इनटू द स्टैक। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, टॉप। नाउ आई विल डिस्कस हियर इज द टॉप। आप लास्ट एलिमेंट को इंसर्ट कैसे करेंगे? पॉप, इट इज यूज्ड टू डिलीट आइटम फ्रॉम द स्टैक। नाउ नेक्स्ट इज टॉप। टॉप इज अ, यू कैन अंडरस्टैंड लाइक इंडेक्स। एरे में जो इंडेक्स होती है 0 1 2 3, तो उसको हम 0 1 2 3 ना लेकर के हम किससे लेते हैं? टॉप से। यानी कि ए बी सी, अभी टॉप पर कौन है? सी। अब मुझे एक और एलिमेंट इंसर्ट करना है डी, तो मैं टॉप को बढ़ा दूं, यानी कि टॉप पर एक और, जो टॉप है अभी टॉप सी है, अब टॉप पर मुझे एक और एलिमेंट, क्योंकि हमेशा हम कहाँ इंसर्ट करते हैं? टॉप के ऊपर। तो अभी मुझे एक और एलिमेंट इंसर्ट करना है डी, तो मैं क्या करूंगी? टॉप के ऊपर आ जाएगा डी, तो अब टॉप कौन हो गया? डी। तो टॉप मीन्स लास्ट एलिमेंट विच वी हैव इंसर्टेड इन द स्टैक। टॉप मीन्स द लास्ट एलिमेंट विच वी हैव इंसर्टेड इन द स्टैक। नाउ अब टॉप पर कौन है? डी। अब मैंने जैसे इसमें पुश किया ई, तो अब टॉप पर कौन आ गया? ई। अब जब मैं पॉप करूंगी तो सबसे पहले जो एलिमेंट आउट होगा वो कौन सा होगा? डी या ई? तो दैट इज ई, बिकॉज टॉप पर कौन सा एलिमेंट है? ई एलिमेंट। फिर ई के पॉप होने के बाद कौन सा एलिमेंट टॉप पर आ जाएगा? डी। तो डी को निकाल के हम बाहर करेंगे तो डी आ गया, तो टॉप एलिमेंट इज डी। नाउ आफ्टर दैट हमने ये वाला एलिमेंट पॉप किया तो अब आ जाएगा टॉप पर सी, राइट? नाउ एल्गोरिथम, इन सी लैंग्वेज एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे पुश और पॉप ऑपरेशन के? फर्स्ट यू विल क्रिएट एन फर्स्ट इंसर्ट फंक्शन। जब सी लैंग्वेज में बनाएंगे तो आप कोई भी नाम फंक्शन का दे सकते हो। इंसर्ट ए इज द एरे नेम, इम्प्लीमेंटेशन है ये। अभी एरे पर हम एक एरे को एज अ स्टैक रेफर करेंगे, एक एरे इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड एज अ स्टैक। तो एरे में हम जब ये प्रॉपर्टी अटैच कर देंगे कि कोई भी बीच से एलिमेंट नहीं एक्सेस करेगा, नहीं उसमें इंसर्ट करेगा, सिर्फ जो भी लास्ट में एलिमेंट है लास्ट पे ही हम इंसर्ट करेंगे। जब आप एरे को ये प्रॉपर्टी अटैच कर दोगे कि जो लास्ट एलिमेंट है, लास्ट में ही एलिमेंट ऐड होगा और लास्ट से ही एलिमेंट निकलेगा। जब हम ये प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे स्टैक पर तो ये मेरा बन जाएगा एरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक इन सी। Insert A is an array, top is the topmost element in the array, top is the top element which is indicating to the top element in this array. Now item is the value which we have to insert, like D insert करना है तो item is the D. Now max size of the array, maximum size of the array. If top is equals to max minus 1, दैट इज जब हमें इंसर्ट करना होता है तो हम पहले ये देखते हैं ना कि जगह खाली है या नहीं है। जब कोई भी कहीं पर चीज रखनी होती है तो आप यही देखते हो ना कि वहां पर जगह है कि नहीं, तो उसको हम बोलते हैं अगर जगह खाली नहीं है मैक्स -1। एरे में मैक्स क्या होता है?
जो साइज होता है उसका उससे एक कम। तो अगर टॉप एलिमेंट मैक्स पर है, जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5, ये एरे 5 साइज का डिक्लेयर है। तो अब एरे की इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है? 0 से। तो 0 1 2 3 4, तो 4 साइज 4 मैक्स -1 यानी कि 5 -1 टॉप एलिमेंट जो है वो 4 पर है। तो व्हाट आई वुड बी सेइंग दैट स्टैक ओवरफ्लो, यानी कि स्टैक में जगह खाली नहीं है। अगर स्टैक में जगह खाली नहीं है तो हम एग्जिट कर जाएंगे, हम कुछ भी इंसर्ट नहीं करेंगे। अगर स्टैक में जगह खाली है तो हम क्या करेंगे? टॉप इज इक्वल्स टू टॉप प्लस 1, यानी कि एक टॉप जो इंडेक्स है इंडेक्स को बढ़ा देंगे और जो नया एलिमेंट आया है उसको पहले हमने टॉप इंडेक्स को बढ़ाया, टॉप पॉइंटर को बढ़ाया, या उसको पॉइंटर भी कह सकते हैं या एड्रेस को भी कह सकते हैं या हम इंडेक्स नंबर भी कह रहे हैं। तो टॉप को बढ़ाया, अब टॉप किसको इंडिकेट कर रहा है? इस खाली जगह को। अब इस खाली जगह पर हम नए एलिमेंट को ले आएंगे। दिस इज द एल्गोरिथम टू पुश एन एलिमेंट इन दी स्टैक। नाउ पॉप करना है, तो पॉप भी हम कहाँ से करते हैं? टॉप से। तो पहले क्या करेंगे? ये जगह खाली करेंगे, जब जगह खाली कर देंगे तो टॉप को माइनस कर देंगे। तो पहले हम यहाँ क्या करेंगे? नाउ नेक्स्ट इज एल्गोरिथम ऑफ डिलीशन इन स्टैक। नाउ इसको एल्गोरिथम ऑफ डिलीशन इन स्टैक इज, डिलीट करने के लिए जैसे फॉर एग्जाम्पल 15 को डिलीट करना है तो पहले इफ टॉप इज इक्वल्स टू -1, यानी कि कुछ स्टैक में है ही नहीं, -1 हम इंडिकेट कराते हैं। दो वेरिएबल्स लेते हैं हम ऐसे, वन वेरिएबल लेते हैं टॉप, जिसमें दो वैल्यूज लेते हैं। अगर भरा हुआ है तो टॉप की वैल्यू क्या होगी? जो मैक्सिमम साइज है उसका एक कम, 1 2 3 4 5। तो मैक्स की वैल्यू क्या होगी उस समय? अगर टॉप भरा, अगर ये एरे भरा हुआ है, ये स्टैक अगर भरा हुआ है तो मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 1 2 3 4। तो 4, स्टैक का साइज कितना है? 5, तो 5 -1, मैक्स इज द मैक्सिमम साइज, ठीक है। और अगर उसकी में -1 है तो क्योंकि 0 से शुरू हो रही है तो -1 का मतलब है कि स्टैक पूरा खाली है। इफ टॉप इज इक्वल्स टू -1 देन प्रिंट स्टैक अंडरफ्लो, यानी कि स्टैक में कुछ भी नहीं है। एल्स सबसे पहले हम, जैसा मैंने बताया, टॉप एलिमेंट को हम बाहर करेंगे। ये जो टॉप एलिमेंट है इसको हम बाहर करेंगे। आइटम इज इक्वल्स टू ए ऑफ टॉप, एंड इफ एंड टॉप इज इक्वल्स टू टॉप -1, टॉप को लेकर के हम नीचे ले आए। पहले इस एलिमेंट को बाहर कर दिया, फिर टॉप को माइनस कर दिया, तो ये मेरा पॉप ऑपरेशन हो गया, ठीक। इस तरीके से हमने पॉप 12 किया। पॉप 12 के लिए हमने पहले वैल्यू को बाहर किया 12 को, और फिर टॉप को नीचे ले आए। फिर यहाँ से फिर 10 को पहले बाहर करेंगे, फिर टॉप को नीचे ले आएंगे। अब टॉप यहाँ आ गया, फिर अब 5 को बाहर करेंगे और टॉप को नीचे ले आएंगे। टॉप की वैल्यू लास्ट में हो जाएगी -1, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज एलिमेंट्स को अगर डिस्प्ले करना है, स्टैक से एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना है, एल्गोरिथम ऑफ डिस्प्ले इन स्टैक। तो टॉप एलिमेंट है, 1 बाय 1 टॉप एलिमेंट को एक्सेस करते जाओगे और रीड करते जाओगे। टॉप कहाँ तक हमें जाना है? जब तक कि स्टैक क्या ना हो जाए। पीछे से शुरू करते हैं स्टैक में, क्योंकि हम हमेशा कौन सा एलिमेंट रीड कर सकते हैं? लास्ट एलिमेंट से। तो लास्ट से हमें कहाँ तक जाना है? 0 तक। तो इसीलिए हमने फोर लूप स्टार्ट किया। 4 i इज इक्वल्स टू टॉप टू 0। हमें टॉप से लेकर के यहाँ तक जाना है रीड करने के लिए। तो डिस्प्ले का फंक्शन बनाया। टॉप मेरा वेरिएबल है जिससे हम स्टैक के लास्ट एलिमेंट को प्रिंट कराते हैं या देखते हैं। आई एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया है। ए ऑफ आई मेरा जो एरे है जिसको मैंने स्टैक की तरह बिहेव करेगा। इफ टॉप इज इक्वल्स टू 0 देन प्रिंट स्टैक एम्प्टी, यानी कि स्टैक में कुछ भी नहीं है। एल्स केस में हम कहाँ जाएंगे? फॉर आई इज इक्वल्स टू टॉप, i is equals to top, for I is equals to top to 0, for I is equals to top to 0, टॉप से लेकर के हम 0 तक जाएंगे। प्रिंट a of i and 4। यहाँ पर प्रिंट a of i, एक एक एलिमेंट को प्रिंट a of i का मतलब है या हम a of i या हम a of top भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम एक एक एलिमेंट को रीड करते चले जाएंगे। Now that is how we will display the elements of an stack. Now next is applications of stack that we will discuss in the next class. Thank you students.